Yes, good afternoon children. Now this is the lecture 4 capacitor NCERT and exemplar problems. Let us see the problem number 1. Obtain the formula for the electric field due to a long thin wire of uniform linear charge density lambda without using the Gauss's law. Now see the figure. Now here this is the AB and AB is the lambda into dx. This is the value of q, that is the dq, that is the small charge present inside this small elementary area considered, line considered. So dq is equal to lambda into dx. This is the charge on the elementary portion AB. I have just written it clearly here. So this is the x and B, the distance of B is x plus dx, a little bit more, and np is equal to r. That is why OP is equal to under root r square plus x square. Now the electric field, as usual, we are calculating dE is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 dq upon OP square, this distance. So lambda into dx upon r square plus x square, because it is the OP square, so this under root will be removed. Now dE dash, the total electric field, is equal to dE cos theta, because dE sin theta component will be cancelled in this case. Only the dE cos theta will be remaining. So substitute the value 1 upon 4 pi epsilon 0 lambda into dx upon r square plus x square and cos theta. This is the equation number 1. See the right angle triangle ONP. The tan theta is equal to x upon r और x is equal to r into tan theta. डिफ्रेंशिएट कर लेंगे dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू r. tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा sec स्क्वायर थीटा, और डी थीटा को अगर इधर ले आते हैं तो dx इज इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा. नाउ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा. Taking the r square common, you will get 1 plus tan square theta, and 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. So it is becoming r square sec square theta. Now substitute the values in the equation number 1. That is that E dash is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught lambda into r sec square theta into d theta upon r square sec square theta into cos theta. Now dE dash is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे. नाउ इट इज द लैम्डा अपॉन आर इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा. टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विद इन द लिमिट्स माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू. तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन आर इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, लैम्डा अपॉन आर एंड 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 टेकिंग आउटसाइड. ओनली द कॉस थीटा डी थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज द साइन थीटा, and limits are minus pi by 2 to plus pi by 2. Now higher limit minus lower limit, the higher limit sin plus pi by 2 minus sin pi by 2. Now 1 upon 4 pi epsilon naught into lambda upon r, it is 1 minus 1 and it is become 2, तो 2 to the 4, तो ये आ जाएगा E dash is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught into r. So this way we are able just to find out the electric field. Now see another question. Question number 2. A regular hexagon of the side 10 centimeters has a charge 5 microcoulomb at each of its vertices. As फिगर को देखिए, हेक्सागन है, उस पर हर वर्टिसेस पे उस पर 5 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है. कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन. अब यहाँ से अगर इसके डायगोनल्स को हम मिला देंगे तो दिस AO is equal to BO is equal to CO is equal to DO is equal to EO is equal to FO is equal to 10 centimeters. That means 0.1 meter. And the total voltage because of all the 6 charges is equal to 6 times 1 upon 4 pi epsilon 0 into Q by R. So 6 into 9 into 10 is power 9 and 5 into 10 is power minus 6, because 5 microcoulomb is equal to coulomb 5 into 10 is power minus 6 and the distance is 0.1 meter.
कैलकुलेट कर लेंगे, इट इज़ कमिंग 2.7 इंटू 10⁶ वोल्ट। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अ क्यूब ऑफ साइड बी हैज़ अ चार्ज Q एट ईच ऑफ इट्स 8 वर्टिसेस। डिटरमिन द पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एरे एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। इसके इस फिगर को देखें, इसके सेंटर ऑफ द क्यूब पे क्या आएगा, तो इसका A से लेकर के और जो लास्ट तक का जो डिस्टेंस होगा वो 3 डायमेंशन से कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। उसका क्या आएगा, √A² + B² + C²। लेकिन यहाँ पे इसकी जो साइड है वो केवल B है, यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट सब B है बिकॉज ऑफ द क्यूब। तो ये इसका डिस्टेंस यहाँ से लेकर के टोटल डिस्टेंस हो जाएगा अब एक कॉर्नर से लेकर के दूसरे कॉर्नर तक, दैट इज द √B² + B² + B²। और O चूंकि मिड पॉइंट पे रखा हुआ है तो इसका जो इस पूरे डिस्टेंस का हाफ हो जाएगा। तो हाफ मैंने लिख दिया है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, यही चीज़ एक समझने वाली थी बस, और कोई सब इसमें कुछ ज़्यादा समझना नहीं है। R इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा और √B² + B² + B², ये आपका √3B इंटू 1/2 आ जाएगा। बस डिस्टेंस ये आपका इस पॉइंट से हर कॉर्नर से O पॉइंट जहाँ पे चार्ज रखा हुआ वहाँ तक का डिस्टेंस ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R, V डैश इज इक्वल टू 8Q एंड V डैश इज इक्वल टू 8 कॉर्नर्स हैं इसलिए 8V आ जाएगा। तो 8 इंटू 1/4πε0 इंटू Q एंड R की वैल्यू √3 इंटू B/2, तो 4Q/√3 πε0 इंटू B कैलकुलेशन से आ जाएगा। 8 कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे हुए, सिमिलर चार्जेस रखे हुए हैं, इसलिए चूंकि इवन नंबर है 8, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0। एक और NCERT का क्वेश्चन देखिए। द हाइड्रोजन एटम, the electron and the proton are bound at a distance of about 0.53 angstrom. 1 angstrom is equal to 10⁻⁻10 meters. The potential energy of the system in electron volt, taking 0 of potential energy at infinite separation of the electron and proton. दूसरा, minimum work done required to free the electron given that its kinetic energy in the orbit is half the magnitude of potential energy obtained in केस A and C. What is the C क्या है? What is the answer to A above if the 0 of potential energy is taken at 1.06 angstrom separation? पहले सेपरेशन 0.53 angstrom दिया हुआ था, अब पूछ रहे हैं कि A का आंसर क्या हो जाएगा अगर ये सेपरेशन 1.06 angstrom कर दिया जाए तो Q1 इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होगा 1.6 इंटू 10⁻19, Q2 इज इक्वल टू प्रोटॉन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻19 एंड R12 दोनों के बीच का डिस्टेंस पहले कितना था 0.53 angstrom था, इसको हमने -10 करके मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया है। तो A पार्ट शुरू करते हैं। फॉर्मूला आपको पता ही है पोटेंशियल एनर्जी का, 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R। तो यहाँ पे R डिस्टेंस यानी कि 1 और 2 के, Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस R12 है। सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, एक प्लस में है इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखना है, एक प्रोटॉन का चार्ज रखना है, बाकी सेम है तो नेगेटिव आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 एंड 1.6 इंटू 10⁻19 होल स्क्वायर अपॉन 0.53 इंटू 10⁻10। ये कैलकुलेशन आप अपने आप कर लेंगे, ये आ रहा है इतने जूल्स। अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लिख लेना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स, इट इज द 1.6 इंटू 10⁻19 जूल्स। तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इससे डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो ये 10⁻19 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका -27.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इन्फिनिटी पे U इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, तो जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, अगर इन्फिनिटी पे लेते हैं तो ये कितना, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये -27.17 माइनस 0, तो ये कितना आ जाएगा -27.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाएगी। बी में क्वेश्चन कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी आई है उसकी हाफ है। तो काइनेटिक एनर्जी में प्लस माइनस हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो ये आ जाएगा 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
टोटल एनर्जी आपकी आ जाएगी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक. पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव साइन विल बी कंसीडर्ड एंड positive will also be considered. So here the potential energy is minus 27.17 plus 13.58. तो इसको माइनस करेंगे, माइनस 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी. वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका जीरो यानी कि इन्फिनिटी पे क्या होगा, जीरो होगा. तो जीरो माइनस, और ये माइनस में एनर्जी आ रही है तो ये प्लस में एनर्जी आ जाएगी. यानी अगर इतनी प्लस में एनर्जी दे दे तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा. सी, अगर डिस्टेंस 0.53 एंगस्ट्रॉम की जगह 1.06 एंगस्ट्रॉम हो जाए तो ओनली द डिस्टेंस की जगह पे हम 1.06 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स रख देंगे. तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इंटू प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 चार्ज ऑन द प्रोटॉन divided by the distance 1.06 into 10⁻10. इसको सॉल्व करके माइनस 21.74 इंटू 10⁻19 जूल्स आ जाएगा. अगेन इफ इट इज डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19 तो माइनस 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा. इफ माइनस 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टेकन एज जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, अगर इसको हम जीरो मान लें तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस एनर्जी एट द इंफिनिटी. तो ये आपका आया था 27.17 माइनस, और ये माइनस 13.58, ये प्लस में हो जाएगा. तो अगेन द नेगेटिव ऑफ 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें क्वाड्रिपोल दिया हुआ है. नाउ क्वाड्रिपोल, अगर दो डायपोल्स को हम एक स्ट्रेट लाइन में रखते हैं जिससे कि प्लस क्यू इधर हो, नेगेटिव इसका यहाँ पे हो, नेगेटिव इसका यहाँ पे हो, तो ये एक ही पोल मान लिया जाएगा और ये प्लस क्यू इधर पे हो जाएगा. लेकिन चूंकि इसमें फोर चार्जेस आर प्रेजेंट, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द क्वाड्रिपोल. और इसी के लाइन में एक पॉइंट पी है जिस पे पोटेंशियल की वैल्यू हमें इस क्वाड्रिपोल की वजह से कैलकुलेट करनी है. तो वेरी सिंपल, पोटेंशियल हर चार्ज की वजह से P पे पोटेंशियल होगा. V इज इक्वल टू 1/4πε0 कॉमन फैक्टर है. अगर इस प्लस Q अपॉन A P डिस्टेंस प्लस माइनस Q अपॉन बी पी प्लस माइनस Q अपॉन बी पी प्लस Q अपॉन सी पी, Q कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा 1/r प्लस ए पी की वैल्यू ये दिए हुए हैं, ये R है, ये दोनों A हैं, ये माइनस 2/r आ जाएगा प्लस 1/r माइनस a आ जाएगा. एलसीएम ले लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2qa² अपॉन r एंड r² माइनस a². इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, अगर क्वाड्रिपोल के डिस्टेंस से r की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, a² कैन बी नेग्लेक्टेड इन द डिनोमिनेटर. यानी कि r के रेस्पेक्ट में a को नेग्लेक्ट करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में a को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे. v इज इक्वल टू 1/4πε0 2q इंटू a² अपॉन ये r³ हो जाएगा. तो हियर इन द केस ऑफ द क्वाड्रिपोल व्हाट द चेंजेस यू आर सीइंग, दैट इज द पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³. जनरली द पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², बट इन द केस ऑफ द क्वाड्रिपोल पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³. एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. एक इलेक्ट्रीशियन है, उसके पास 2 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर्स मौजूद हैं और उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो टोटल 1 किलो वोल्ट का है. एक लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स आर अवेलेबल टू हिम. आई एम सॉरी, इलेक्ट्रीशियन को 2 माइक्रोफैरेड नेट कैपेसिटेंस चाहिए. उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस उसके पास है 1 किलो वोल्ट का और उसके पास बहुत सारे 1 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर्स अवेलेबल हैं जो जिनका की पोटेंशियल 400 वोल्ट से ज़्यादा नहीं हो सकता एक कैपेसिटर के अक्रॉस. सजेस्ट अ पॉसिबल अरेंजमेंट
दैट रिक्वायर्स अ मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। ये सजेस्ट करना है कि कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स वो यूज करे जिससे कि वो 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस उसको मिल जाए और टोटल वोल्टेज उसके पास 1 किलो वोल्ट हो। हमने ये मान लिया है कि n कैपेसिटर्स हैं एंड कनेक्ट्स देम इन m रोज, यानी कि n कैपिटल N कैपेसिटर्स और m रोज हमने मान ली हैं। तो इसमें ईच रो हैविंग द स्मॉल n कैपेसिटर, एक रो में स्मॉल n कैपेसिटर्स हैं। टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कैपिटल N और एक रो में जितने कैपेसिटर अटैच किए गए हैं वो n मान लिए हैं। तो कैपिटल N कितना हो जाएगा कि जितनी रो होंगी और एक रो में जितने कैपेसिटर्स हैं तो m इंटू n हो जाएगा। इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। C की वैल्यू 1 माइक्रोफैरेड है, तो रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो C इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड आना चाहिए एंड द वोल्टेज रेटिंग ऑफ ईच कैपेसिटर इज गिवन टू यू, दैट इज द 400 वोल्ट। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है 1 माइक्रोफैरेड जो उसके पास अवेलेबल है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट टोटल दिया हुआ 1 किलो वोल्ट, इसको हमने 10⁻³ वोल्ट ले लिया है। इस सर्किट के अक्रॉस इतना वोल्टेज लगा सकते हैं। तो सीरीज में अगर हम इनको ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा, वोल्टेज 400 इंटू n हो जाएगा और ये वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻³ जो टोटल वोल्टेज लगा हुआ है। तो इससे हमें स्मॉल n की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, दैट इज द 2.5 आ रहा है। अब ये बिल्कुल एब्सर्ड रिजल्ट आ रहा है चिल्ड्रन। बच्चों ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 2.5 कैपेसिटर हम यूज कर पाएँ। तो n जो है वो n कैन नॉट बी 2। अब n कैन नॉट बी 2 क्यों नहीं हो सकता है, ये 2.5 को हमें 3 क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम 2 लेंगे तो आपका जो ये 400 का जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो 500 पोटेंशियल हो जाएगा, जो गिवन वैल्यू के अगेंस्ट में हो जाएगा, यानी गिवन क्वेश्चन में जो वैल्यू दी हुई है उससे ज़्यादा हो जाएगी। तो हम यहाँ पे 2 कैपेसिटर, देखिए क्वेश्चन ये भी उठता है कि 2.5 आया है तो बच्चे पूछते हैं कि हम 2 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं। तो हमने इसीलिए इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि हम 2 इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि जो गिवन रेटिंग हमारी दी हुई है 400 वोल्ट की, अगर हम 2 कैपेसिटर लेंगे तो ये रेटिंग बढ़ करके 500 वोल्ट हो जा रही है, विच इज मोर देन द गिवन रेटिंग। इसलिए हम इसको 3 कैपेसिटर्स यूज करेंगे। तो अब हमें स्मॉल n की वैल्यू पता चल गई है, यानी कि एक रो में हम 3 कैपेसिटर्स यूज कर रहे हैं। तो इसका ये सीरीज में होंगे, तो सीरीज के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए आप, 1/c डैश इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 1/1, ये आ जाएगा 3/1। तो C डैश की वैल्यू आ जाएगी 1/3 माइक्रोफैरेड। यानी कि यहाँ पे जो इसका कॉम्बिनेशन, एक रो में जो n कैपेसिटर्स लगे हैं उनका जो इक्विवेलेंट आ जाएगा C डैश, वो आ जाएगा 1/3 माइक्रोफैरेड। अब कितनी रोज हैं हमारे पास, m रो हैं, तो इसका देख लीजिए C इज इक्वल टू m इंटू C डैश हो जाएगा। तो m की वैल्यू भी पता है, यानी कितनी रो हमें लगानी पड़ेंगी वो भी निकल आएगा C/C डैश से। तो C/1/3 ये आ जाएगा, 6 रोज आ जाएंगी। और एक रो में कितने कैपेसिटर लगाए हैं हमने, 3 कैपेसिटर्स लगाए हैं। कैलकुलेशन 2.5 का आ रहा है लेकिन हमने 3 कैपेसिटर्स लगाए हैं और 6 रोज लगाई हैं, तो ऑटोमेटिकली 6 3 18 कैपेसिटर्स अगर वो इलेक्ट्रीशियन लगाएगा तो उसको 2 माइक्रोफैरेड का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलेगा और पोटेंशियल 1 किलोवाट जो क्वेश्चन में गिवन है वो उसकी भी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। और जो 1 माइक्रोफैरेड के जो कैपेसिटर्स मौजूद हैं उसके पास, उसमें भी कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, यानी कि 400 वोल्ट है तो वो 400 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज बियर ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमने 2.5 में 2 कैपेसिटर ना लेकर के 3 कैपेसिटर लिए हैं, जिससे कि 400 से बढ़ करके वो 500 वोल्ट ना होने पाए। ठीक है, थैंक यू चिल्ड्रन। नेक्स्ट we will just see that lecture number 5 in continuation of these type of problems, and then after we will finish up this chapter and will begin the next unit number 2. Thank you very much.